હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું જી મેડમ સાયનાથ ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું વિષય હિન્દી અને ધોરણ 9નો જે ત્રીજો પાઠ છે, ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, એ પાઠ છે એ તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના મેં બીજા 2 ચેપ્ટર મારી ચેનલમાં મૂકેલા છે. જો એ તમે વિડીયો ના જોયેલો હોય તો તમે મારી ચેનલ ખોલી અને પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો પહેલાં તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી અમે નવા વિડીયો મૂકીએ અને નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ભાગ 1 જોઈ ગયા. હવે આપણે ભાગ 2માં આજે જોવાનું છે કે હવે આપણે આ પાઠ શું કહેવા માંગે છે. हुआ यहाँ कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए इसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं. यहाँ શું કીધું કે થયું એ કે આપણા દેશની અંદર કોટી કોટી એટલે કરોડો જે ગરીબ લોકો છે, બરાબર, એની પરિસ્થિતિ દૂર કરવા માટે ઘણા બધા કાયદા કાનૂન બનાવવામાં આવે. એમાં क्या क्या उद्योगों से, जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता. यानी कि हमारे देश में जो क्या करना है कि जो इनके जे खेती उद्योग છે, વેપાર છે, શિક્ષણ છે, આરોગ્ય છે, સ્વાસ્થ્ય છે, તેને વધારે ને વધારેમાં સારું બને તે માટે માણસને એમ કે એ કાર્યોમાં લગાવવામાં આવ્યા છે. उनका मन हर समय पवित्र, तेનું मन दरेक जगह पवित्र નથી હોતું. प्रायः वह लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा का और ज्यादा ध्यान दे તે પોતાનું લક્ષ્ય શું છે, કામ શું છે, બરાબર, તેને ભૂલી જાય છે અને પોતાને શું સુખ સુવિધા મળે તેના પર વધારે ધ્યાન આપે છે. જે શું કીધું આ પેરેગ્રાફની અંદર કે આપણા દેશ કે આપણા એમ કે શું કરવાનું છે, મનુષ્ય શું કરવાનું છે કે કરોડો એમ કે ગરીબો છે એની પરિસ્થિતિ દૂર કરવાની છે. એમાં માણસે શું કરવાનું છે તો કે સારો એમ કે ખેતી ઉદ્યોગ વિકસે, સારો વેપાર અને સારું શિક્ષણ મળે, લોકોને સારું આરોગ્ય, સ્વાસ્થ્ય મળે, એ માટે એના પ્રગતિ થાય એ માટે દરેક મનુષ્યએ કાર્ય કરવું જોઈએ. છતાં પણ પોતે મનુષ્ય પોતાનું લક્ષ્ય કામ શું છે એ ભૂલી જાય છે અને પોતાને શું સુખ સુવિધા મળે એના પર વધારે ધ્યાન આપે છે. इसलिए इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि हमारे जो करोड़ों गरीब लोगों है उसकी जो परिस्थिति है उसे दूर करने के लिए हमारे देश ने तो कितने भी कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन उस कायदे का जो कायदे है उसका पालन नहीं करते, लोग उसका पालन नहीं करते. और जो कृषि उद्योग है, जो व्यापार है, शिक्षण है, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना, हमारे देश को जो बीमार लोग हैं उसकी सेवा करना और उसमें कितनी भी प्रगति करना, और लोग भूल जाते हैं और अपने को कैसी, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, अपने को कैसे सुख सुविधा मिलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं. अब आगे क्या कहा है लेखक ने, વ્યક્તિ ચિત્ત સબ આદર્શો દ્વારા ચલિત નહીં હોતા. યાની કે વ્યક્તિ, દરેક મનુષ્ય છે, ચિત્ત એટલે મન, પોતાનું જે મન છે એ હંમેશા ભટકેલું રહે છે કે એમાં સારા વિચારો છે, સારા મૂલ્યો છે, એના પર એની અસર થતી નથી. जितने बड़े पैमाने हैं इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं. કે જેટલા પેમાને એટલે માપદંડ કે જેટલા પણ ક્ષેત્રો છે, જેટલા પણ જે વિકાસ છે, મનુષ્યની પ્રગતિ છે, એમાં ઘણું બધું એમ કે જે પરિસ્થિતિ બનાવવામાં આવી છે, એના જેટલા પણ માણસની જેટલી પ્રગતિ થઈ છે એટલા પ્રમાણમાં માણસની અંદર લોભ છે, મોહ છે, ક્રોધ છે, એ વધારે એમ કે વધારે ને વધારે એનો વિકાસ થયો છે, વધારે ને વધારે ફેલાણો છે. અને લક્ષ્ય की बात भूल गई है. मनुष्य है वो लक्ष्य क्या है, सो कार्य क्या करना है, ये पोते बात भूली गया है. और आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया है कि आदर्शों मूल्यवान क्या है और अच्छा क्या है वो उसको मजाक का बनाया गया कि वो बड़ा आया सच्चा, वो बड़ा आया ईमानदारी, और उसको भूल गए हैं और स्वयं और दक्यानाशी मान लिया है. स्वयं એટલે મન પર કાબુ દેને વાળા યા દક્યાનાશી પુરાને ખ્યાલ વાળા. તો કે હવે આપણે આમાં મનુષ્ય કે પોતાનું કાર્ય શું છે એ વાત ભૂલાઈ ગઈ છે અને જે સારા વ્યક્તિ છે એને મજાક તરીકે મજાક ઉડાવવામાં આવે છે અને તે એક જે એમ કે જે જૂના વિચારવાળો છે એવી રીતે માની લેવામાં આવે છે. પરિણામ જો હોના થા વહોરા, એ પરિણામ જે થઈ રહ્યું છે તે થઈ રહ્યું છે, બરાબર.
હવે यहाँ कुछ थोड़े से लोग बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है कि અહીંયા થોડા વ્યક્તિ છે એ આ લોભ છે बराबर જે बढ़तो लोभ છે એનું પતન છે। परंतु इस भारतवर्ष में पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप में महान और उपयोगी दिखाई देने કે આપણા ભારત દેશની અંદર જે પુરાણ એમ કે જે જૂના વિચારો છે જૂના મૂલ્યો છે એને વધારે ને વધારે માણસને ઉપયોગી થાય એવું આપણે જોવા મળે છે। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा विद्यार्थी मित्रों कि हर व्यक्ति है उसका मन अच्छा नहीं होता, पवित्र नहीं होता, उसका भी मन विचलित होता है। जितने भी क्षेत्र में मनुष्य प्रगति करते हैं उतनी ही मात्रा में उसमें मोह लोभ आता है, मोह आता है, क्रोध आता है। और मनुष्य क्या करते हैं कि अपनों को कुछ क्या कार्य करना है वो बात भूल जाते हैं और लोग जो सच्चे हैं ईमानदार है उसका लोग मजाक बनाई देते हैं और उसे कहते हैं कि बड़ा या सच्चा, बड़ा या सेवा करने वाला और पुराने ख्यालों वाला, इसलिए लोग उसका मजाक बना देते हैं और परिणाम होना था हो रहा है। और लोग क्या है कि लोभ के कारण उसका पतन हो रहा है और हमारे देश में जो पुराने ख्यालों है, विचारों है, उसके हमें खूब उपयोगी, ज़्यादा अधिक उपयोगी दिखाई देने। आगे क्या होता है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि भारत આપણો ભારત દેશ છે એ અને કાનૂન એટલે કાયદો અને ધર્મના રૂપમાં આપણે જોવા મળે છે। આજ એકાએક કાનૂન और धर्म में अंतर दिया गया है कि आज एकाएक कानून અને કાયદો શું છે અને ધર્મમાં ફેરફાર શું છે એ જોવા મળે છે। ધર્મ को धोखा नहीं दिया जा सकता कि धर्म છે એને આપણે વિશ્વાસઘાત કરી નથી શકતા, कानून को दिया जा सके, कायदो છે એને આપણે વિશ્વાસઘાત કરી શકીએ। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। એનું કારણ શું છે કે लोग धर्म भीरू एटले धर्म थी डरनार छे। वह कानून की त्रुटियां से लाभ उठाने संकोच नहीं, कानून की त्रुटियां कायदानी जे खामी छे, त्रुटियां एटले खामी, तेनाथी लाभ उठवा जे लाभ कई रीते लेवो एमां मनुष्यने कांई पण एम के संकोच थतो नथी। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि धर्म और जो कानून क्या है उसमें कितना भी अंतर है और हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते। कि इसलिए क्योंकि हम धर्म से डरते हैं, यानी कि हम धर्म से डरे हुए हैं और कायदे से हमें, कायदे कितने भी हो उससे हमें कुछ फेर नहीं पड़ता, उसकी कमियां क्या है, उसका लाभ उठाने में हमें कुछ भी नहीं शर्म आती, कुछ भी संकोच नहीं होता। यानी कि हम देखते हैं कि अदालत में देखते हैं कि जो तराजू है उसमें अच्छा न्याय मिलता है, जो हमें न्याय देवी है वो अच्छा न्याय देती है, सबको अच्छा न्याय देती है। तो हम कायदे को नहीं समझते क्योंकि हम धर्म भीरू हैं, हम धर्म से डरते हैं और हम इसमें हमें समझाया गया है धर्म और कायदा क्या है, कानून क्या है, इसे हम इस पैराग्राफ में अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस बात में पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा है, भीतर भीतर भारत वर्ग अभी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कि यहाँ हमें कि આપણે આ વાતનું જે પ્રમાણ એમ કે આ વાતની જે સાબિતી છે એને આપણે ઘણી બધી એમ કે શોધવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પણ આપણા સમાજના જે ઉપરનો વર્ગ છે, ઉપરના જે અધિકારી છે એ એમ કે ઘણી બધી પ્રયત્ન કરે છે, પણ ભીતર એટલે અંદર આપણો દેશ છે એ આનો અનુભવ કરી રહ્યો છે કે ધર્મ कानून से बड़ी चीज है कि धर्म से कानून थी कायदा थी पण वधारे मोटो छे। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बने हुए है कि हजी पण एम के आपणा देशमां एम के सेवा करवी, वफादारी, एम के साचुं बोलवुं अने धर्ममां मानवुं एना एम के घणा बधा आदर्शो छे आपणा देशने। वह दब अवश्य गए है कि ते दबाई गया छे लेकिन नष्ट नहीं हुए, ते एम के नाश नहीं पाम्यो। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है कि आज पण आपणा देश में एवा मनुष्य छे कि मनुष्य ने प्रेम करे छे। महिला का सम्मान करते हैं कि स्त्रीओ छे एनु सम्मान करे छे, एनु मान राखे छे। झूठ और चोरी को गलत समझता है कि आपणे खोटू बोलवुं, चोरी करवी एने एम के खोटू माने छे, बराबर। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना को पाप समझ के बीजा ने दुख पहुंचाड़ू ये एक पाप छे। हम जब छोटे थे तो हमें अपनी मम्मी सिखाती है कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी मत करना, कभी
दूसरों को पीड़ा मत देना, दूसरों को दुख मत देना, इसे हम सिखाई देते हैं। हम अपने बालक को इसे सिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ हम धर्म से डरते हैं, हम धर्म भीरू है, क्योंकि हम धर्म में मानते हैं कि हमें ऐसा, हम चोरी करेंगे, दूसरों को दुख देंगे तो हम पाप, हमें जो पाप, हम उसको पाप समझते हैं, इसीलिए हम धर्म को अधिक मानते हैं। और हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि दरेक मनुष्य છે પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં આ વાતનો અનુભવ કરી રહી છે। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि હવે આપણે સમાચાર પત્રોમાં જોઈએ છે કે આપણે ભ્રષ્ટાચાર, ચારે તરફ ચોરી, તસ્કરી, એવી જે આપણે જે સમાચાર વાંચીએ છીએ તેના પર વધારે માણસોને ગુસ્સો આવે છે। હવે આપણે સાબિત કરવા માંગીએ છીએ કે આવી વસ્તુ છે એ એમ કે ખરાબ વસ્તુ છે અને સમાજમાં આવી જે એમ કે જે વસ્તુ થાય કે ભાઈ ચોરી થાય કે ભ્રષ્ટાચાર થાય તે એમ કે એટલા બધા થવા ન જોઈએ અને જે ગલત તરીકે છે, જે ખોટી રીતે જે પૈસા કમાય છે યા માન સંગ્રહ કરે કે જે ખોટી રીતે પોતાની માન प्रतिष्ठा मोभो जाळवे छे ई खोटू छे। એટલે इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा है कि हमारे देश में जो ऊपरी हो रहा है, हमारे देश के लोग हैं, उसमें हमारे देश के लोग हैं, इसमें जो ऊपर जो हो रहा है और अंदर भीतर यानी अंदर हमारे देश के लोग अनुभव कर रहे हैं कायदो क्या है, कायदा है। कारण कि हमारे देश के लोगों में सेवा है, ईमानदारी है और सच्चाई भी है और वो दब गए हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन अब वो दब अवश्य गए हैं लेकिन अब नष्ट नहीं हो। क्या हमारे देश के लोगों में अभी भी ईमानदारी है, वो सच्चे है। कारण कि आज भी हम मनुष्य से प्रेम करते हैं, स्त्रियों की जो रक्षा करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते, इसीलिए हमारा देश मनुष्य है। और समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार, चोरी और तस्करी ऐसे समाचार हम गलत समझते हैं और इसको कम हो, हमारे देश में भ्रष्टाचार कम हो, इसीलिए हमें गलत तरीके कोई धन कमाए ऐसा हम नहीं मानते, इसीलिए इसको सजा होनी चाहिए। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यहाँ मालूम होती है कि किसी आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसे रस लिया जाए और दोषाघटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कि दोषों को पर्दाफाश, बुराई क्या है उसका पर्दाफाश यानी भेदभाव खोल देना, उसका भेद खोल देना, ये बुरी बात नहीं। कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो बुराई वाला काम करते हैं, उसका भेद खोलना ये हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बुराई यहाँ मालूम होती है कि किसके आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें हमें रस लिया जाता है। कि હવે આપણે એમ કે જે ખરાબ કામ ત્યારે ખબર પડે છે કે આપણે એને જે ગલત, જે એમ કે ખોટું કરવાવાળા છે તેને આપણે સાથ દઈ અને તેને એમ કે જે સાથ દઈએ અને વધારે ને વધારે એને સાથ આપી અને આપણું આપણે ફરજ માની લઈએ છીએ, ત્યારે એમ કે बुराई में रस लेना बुरी बात है। જે ખરાબ કામ કરે છે તેમાં આપણે વધારે ને વધારે એનું સન્માન કરીએ, એમાં રસ લઈએ, એક એમ કે ખોટી વાત છે। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना बुरी बात है। કે જે સારી વસ્તુ છે એને એમાં વધારે ને વધારે રસ લઈ અને આગળ લઈ જવામાં, બરાબર, એને આગળ નથી લઈ જતા, એ આપણી ખરાબ ટેવ છે, એ એમ કે ખોટી ટેવ છે। सेकंडों घटना ऐसी घटती है कि उसे उजागर करने से लोगों में चित्त में अच्छाई के प्रगति अच्छी भावना जाग देती है। सैकड़ों કેટલી બધી ઘણી બધી એમ કે સેકન્ડ એમ કે ઘણી બધી એવી ઘટના બને છે કે તેને આપણે લોકોના જે મગજ ઉપર, ચિત્ત, મન ઉપર જે સારી એમ કે સારા સમાચાર આવે એવી ભાવના જાગે। તો આ પેરેગ્રાફમાં શું કહ્યું છે કે જે આપણે બીજાની જે ખરાબ વસ્તુ છે, બીજાની જે વાક છે, બરાબર, બીજાનું જો એમ કે જે ખરાબ કામ કરે છે તેને આપણે પકડી પાડવા અને બધાને આગળ જાહેર કરવા, એ એમ કે ખોટી વાત નથી। અને ત્યારે આપણે એમ કે ખબર પડે છે કે આણે ખોટું કર્યું, બરાબર, તો આપણે એમાં સાથ એમ કે એને સાથ દેવાની
જરૂર નથી અને આપણે ઘણીવાર શું થાય કે મનુષ્ય એને સાથ દે અને પોતાની ફરજ માને છે અને જે ખરાબ કામ કરી લે છે એમાં આપણે એની સાથે એમ કે સાથ દેવો એ ખરાબ વસ્તુ છે અને જે સારી વસ્તુ છે, જે સાચું કામ છે એને આપણે સાથ દેવો જોઈએ. અને ઘણી બધી એવી ઘટના બને છે કે આપણે જે સારી વાત છે, આપણે જોયું છે કે ન્યૂઝપેપરની અંદર જે સારી વાત છે, જે એમ કે જેણે સારું કર્યું છે એ વધારે સમાચાર નથી આવતા, જે ખરાબ કામ છે એ વધારે આપણે જોવા મળે છે કે આપણે સમાચાર पत्रों के भ्रष्टाचार, चोरी, तस्करी ये सब समाचार भरे रहते हैं, जो अच्छा कार्य किया उसका हमें कभी मालूम नहीं होता. तो इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें समझाया कि दूसरों का जो दोष है, दूसरों की कमियां है, उसको सबके सामने लाना ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. हमें पता चले तो हमें गलत पक्ष को, हम जो गलत लोग हैं उसको साथ नहीं देना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उसमें उसको अच्छाई बतानी चाहिए. और सेकंड, कितनी भी घटना बनती है और लोगों के मन में, लोग जो है इसके मन में जो अच्छी तरह की भावना आए, इसी हमारी भावना जगानी चाहिए. अब क्या हुआ, एक बार लेखक के जो घटना होती है उसके सामने क्या होता है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैंने जल्दी गाड़ी में आकर बैठा. एक बार एम के लेखक शू है कि रेलवे स्टेशन में टिकट लई अने पोते भूलथी 10 રૂપિયાની એમ કે 10 રૂપિયાની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી અને લેખક પોતે જલ્દી ટ્રેનમાં બેસી ગયા. बराबर. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिन में सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित है. थोड़ी वार में जे टिकट मास्टर है ई एम के जे बीजा नंबरनो डब्बो हतो एमांथी बधाए जे व्यक्ति हता मनुष्य एना एम के चेहरा पर एम के निरीक्षण करता हता, कारण के लेखके भूलमांथी 100 રૂપિયાની नोट आपी दीधी हती અને જે એમ કે ટિકિટ માસ્ટર છે આને शोधता था ते एनी जगह एम के सामे आवे छे. उसे मुझे पहचान लिया, तेने मने एम के ओळखी लीधो ने बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि खूब विनम्रता थी, वफादारी थी एम के मारा हाथ में 90 एटले 99 रुपया राखी दीधा अने बोल्या यह बहुत गलती हो गई है कि आ मारी भूल थई गई है, आपने भी नहीं देखा, ए तमे पण न जोई, मैंने भी नहीं देखी, मैं पण मने कई ख्याल न रही. उनके चेहरे एक विचित्र संतोष की गरिमा थी. तेना चेहरा पर एक संतोषनी एम के जे एम के संतोषनी एक रेखा हती. मैं चकित रह गया. चकित रह जाना एटले आश्चर्यचकित हो जाना कि लेखक से एकदम एना सामु जोई रही है अने आश्चर्यचकित थई जाय छे. एक बार क्या होता है, लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कहा है कि एक बार जब लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते होते गलती से, भूल से उसे 10 रुपये के बजाय कितने रुपये 100 रुपये का नोट दिया और टिकट बाबू जल्दी उसे ढूंढते हैं और उसे जो बड़ी विनम्रता से उसमें हाथ में 90 रुपये के नोट रखते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई और हमें आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. और उसने जो वापस पैसे दिए उसमें वो संतोष हुआ और लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है. इसमें कहा है कि हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति अभी भी है, सच्चे लोग अभी भी है, क्योंकि यहाँ एक लेखक को उदाहरण द्वारा हमें समझाया गया है कि टिकट मास्टर ने उसे जो पैसे थे वो वापस कर दिए. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है. लेखक कहे છે કે હું કઈ રીતે કહું કે આપણા દુનિયામાં જે એમ કે સારી વસ્તુ છે, એમ કે સાચું છે અને વફાદારી છે એ એમ કે ગુમ થઈ ગઈ છે. વિશે અનેક અવાંછિત ઘટનાએ भी હોય કે ઘણી બધી એવી જે ખરાબ ઘટના પણ થઈ જાય છે, પરંતુ यहाँ एक घटना ठगी और वंचने अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है कि आ एक जे घटना છે એ એમ કે જે ભ્રષ્ટાચારી અને જે ધોકાબાજી एम के जे आपणे खराब काम करवाड़े एवी घटना पण एनाथी पण आ घटना छे ए वधारे शक्तिशाली छे. अब क्या होता है कि इस पैराग्राफ में क्या है कि लेखक कहे छे कि हूँ कई रीते कहूँ कि आपणा देश में ईमानदारी एम के गुम थई गई छे. तेवी घणी खराब घटनाओं बने छे कि एमां जे भ्रष्टाचार छे, एमां धोकाबाजी छे, एनी घणी बधी घटनाओं एनाथी पण वधारे आ घटना शक्तिशाली छे. लेखक ने क्या कहा आगे, एक बार मैं
बस यात्रा कर रहा था। लेखक ने कहा कि हूँ एक बार बस में या इनकी मुसाफरी करी रही हो तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे कि मारी साथे कोण हतुं तो कि मारी साथे मारी पत्नी और 3 बाळको हता। बस में कुछ खराबी थी कि बस एम के जे बस एम के जे कंईक पण एम के कंई प्रॉब्लम हतो रुक रुक कर चलती थी, ए रोकाई रोकाईने चालती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस जवाब दे दिया। यानी कि इसमें क्या कहा है लेखक ने कि 5 किलोमीटर पहला पण जे निर्जन एटले के कोई पण अवर जवर माणसोनी न थती होय त्यां बस में जवाब दिया कि बस में कारण के बस ने जो जे उसमें खराबी थी इसलिए रुक रुक कर चलती थी और सुनसान जगह पर ठहर गई। रात में कोई 10 बजे हो गए, यानी कि इनके रातना केटला वागे तो कि 10 वागे आ घटना बनी। बस में यात्री घबरा गई कि बस में बधा यात्रीओ हता जे मुसाफर हते बधाए घबराई गया। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना कि कंडक्टर से इनके बस में उतरी और साइकिल लईने आगे निकली गयो। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिए गए। बधाई लोग जे यात्रीओ छे बसना मुसाफरी छे तेने एम थयुं कि आ कंडक्टर छे आपणी साथे विश्वासघात करी रह्यो छे, एने संदेह એટલે शंका थवा लगी। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि जब मैं यात्रा कर रहा था, मुसाफरी कर रहा था, तब मेरे साथ कौन था तो कि मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। और क्या होता है कि बस में कुछ खराबी होने से इनकी खराबी होने से बस रुक रुक कर चलती है और सुनसान जगह पर रुक जाती है। और रात के कितने बजे थे तो रात के 10 बजे हो गए और सब यात्री बस रुक जाने से घबरा जाते हैं। और कंडक्टर क्या करता है तो कंडक्टर सब लोगों की जान बचाने के साइकिल लेकर चल बसता है। और लोगों को क्या होता है, लोगों को गलत फहमी होती है तो उसको शंका होती है कि हमें इस जो बस वाले है उसने धोखा दिया है। हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो हवे मैं आ मारा सरल शब्द में तमने आज भाग 2 में आ पाठ समझावવાનો प्रयत्न कर्यो। तो विद्यार्थी मित्रों, जो आ विडियो तमने गम्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो और अन्य विद्यार्थी सुधी पहोंचाडजो। थैंक यू सो मच।